قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ قرآن کریم صحیح مخارج اور صفات کے ساتھ سیکھنے کے لیے ہمارا تجوید القرآن کورس جاری ہے، اور آج ہماری فورتھ کلاس سے فورتھ لیکچر آج ہوگا، اور جیسا کہ تسلسل چل رہا ہے اسی کو ہم آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ہم پہلے جس طرح ہر دن اپنے کنٹینٹ کو ڈسکس کرتے ہیں، تو آج کا ہمارا جو کنٹینٹ رہے گا ایز یوزول، پہلے ہم قرآن کریم تلاوت کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی ایک فضیلت سیکھتے ہیں، اور اس کے بعد آج ہمارا جو ڈسکشن ہوگا، جیسے ہم نے پیچھے مخارج پڑھے ہیں، آج انہی مخارج کو ہم کنٹینیو کریں گے، اور آج ہمارے انشاءاللہ تمام حروف کے مخارج کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اس میں ہم ضا، ذال، سا کا مخرج پڑھنے والے ہیں آج، اس کے ساتھ ساتھ پھر زا، سین، صاد کا نیکسٹ سلائیڈ میں پڑھنے والے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ سلائیڈ ہوگی اس میں ہم فا، با، میم، واو کا مخرج پڑھیں گے اور گنہ کا مخرج پڑھیں گے، اسی طرح حروف مدہ کا بھی ہم مخرج پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے قرآن کریم کے متعلق کیا فضیلت سننی ہے وہ سنتے ہیں ہم۔ قرآن پاک پڑھنے کی کیا اہمیت ہے۔ آج میں نے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ یہاں پہ نقل کی ہے۔ یہ آیت مبارکہ ایک کنورسیشن کو بیان کر رہی ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ یا سنا بھی ہوگا کہ جب شیطان نے آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، تو اللہ تعالی نے اس کو اپنے دربار سے باہر نکال دیا تھا، ملائکہ کی صفوں سے باہر نکال دیا تھا، اور فرمایا تھا فخرج فإنک رجیم، تو دفع ہو جا، تو رجیم ہے، تو دھتکارا ہوا ہے۔ تو شیطان کی بہت ساری باتیں ہوئے اللہ تعالی سے، تو یہ قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں آئی ہوئی ہیں۔ تو جب شیطان کو نکالا اللہ تعالی نے، فرشتوں کے صفوں سے نکالا، تو کیا ہوا پھر؟ ایسا ہوا کہ اس نے اللہ تعالی سے یہاں سے کہا قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم۔ اس نے کہا، یعنی شیطان نے کہا، مجھے اس کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر لوگوں کی طاق میں بیٹھوں گا، میں سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا اور دیکھوں گا کہ لوگ اس راستے پہ کیسے چلتے ہیں۔ پھر اس نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، پھر میں ان کو یعنی سیدھے راستے کی طرف آنے نہیں دوں گا، میں ان کے سامنے سے آؤں گا، میں ان کے پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم، میں ان کے دائیں سے آؤں گا، وعن شمائلہم، اور میں ان کے بائیں طرف سے آؤں گا۔ کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ میں ہر کوشش کروں گا اور ان کو تیرے سیدھے راستے پہ چلنے نہیں دوں گا۔ وَلَتَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ تو نہیں پائے گا اپنے بندوں میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار بندہ، یعنی وہ تیرے سیدھے راستے کی طرف نہیں آئیں گے جب میں ان کو بہکاؤں گا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے اللہ تعالیٰ، اس کی تشریحات علماء نے بہت ساری کی ہیں، لیکن ہم یہاں پہ ایک آیت کے کنٹیکسٹ میں اس کو پڑھتے ہیں۔ تو سیدھے راستے سے روکنے کا ایک قسم کا چیلنج دیا ہے شیطان نے کہ مجھے تیرے بندوں کو سیدھے راستے سے روکنا ہے۔ تو ایک مسلمان ہوگا وہ تو نہیں رکے گا نا، جب اس کو پتہ چلے گا کہ سیدھا راستہ یہ ہے، اور شیطان مجھے وہاں سے روکنے کی کوشش کرے گا۔ جب مسلمان کو پتہ چلا کہ سیدھا راستہ ادھر سے ہے اور وہاں سے مجھے شیطان روکے گا، تو جو اللہ کا بندہ ہوگا نا، وہ اس راستے پہ پوری جان، پوری محنت کے ساتھ، پوری تگ و دو کے ساتھ اس راستے پہ چل پڑے گا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے۔ تو سیدھی راہ دکھانے والا کون ہے؟ قرآن مجید ہے۔
تو قرآن مجید ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور شیطان اس راستے سے روکنے کی کوشش کرے گا آپ کو، کبھی بولے گا کہ یہ بہت ٹف ہے یار، یہ تجوید یہ ہیکٹک ہے، یہ ہمیں کہاں سمجھ آئے گا، کبھی اور کچھ وسوسے ڈالے گا، کبھی یہ ڈالے گا یہ مخارج مجھے یاد نہیں رہتے ہیں، یہ مجھے پروناؤنس نہیں ہوتے ہیں۔ حالانکہ جو اللہ تعالی کے حقیقی بندے ہیں، جو رحمان کے بندے ہیں، جو عباد الرحمان ہیں، وہ یہی کہیں گے کہ نہیں، مجھے قرآن سیکھنا ہے، مجھے کسی بھی حالت میں سیکھنا ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں آتی تھی، جو ہمیں ٹف لگتی تھی، لیکن ہم نے سیکھی اپنی زندگی کے لیے، تو قرآن بھی سیکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہ مخارج تھوڑے مشکل معلوم ہو، لیکن آگے آگے ہم انشاءاللہ جب ہم ان کو پڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ پروناؤنس بھی اچھے سے ہوتے رہیں گے۔ آپ کو بس صبر کرنا ہے، اپنی نیت درست رکھنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو میرے راہ میں کوشش کرتا ہے میں اس کے لیے راستے کھول دیتا ہوں۔ اس لیے اپنا ذہن بنائیں، انشاءاللہ ہمیں قرآن درست سیکھنا ہے۔ جب آپ سیکھنے کے لیے نکلیں گے نا، نیت رکھیں گے اور کوشش بھی کریں گے، یہ مخارج اتنے بھی ٹف نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے لگیں جو نئے ہوں، بگنرس ہوں، تو انشاءاللہ ہم ان کو ریپیٹ کرتے رہیں گے جا بجا، وقتاً فوقتاً۔ کل میں انشاءاللہ یا آج ہی اگر ٹائم ملا تو میں پورے مخارج کو ریپیٹ بھی کراؤں گا، جس طرح ہمیں یہ یاد رہیں گے۔ پھر پریکٹس سیشنز میں بھی ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ آپ کو پریکٹس کروائیں گے۔ اگر اس کے بعد بھی آپ کو اور پریکٹس کی حاجت ہوئی تو وہ کروائیں گے۔ مان لو 2 منتھس کا کورس ہم نے رکھا ہے، ہو سکتا ہے کسی کو زیادہ ٹائم لگے تو ہم اس کو ٹائم دیں گے، بس آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ آپ کو قرآن سیکھنا ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی اپنا پورا تعاون، پورا فیور دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ چلتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف۔ ہم نے ابھی تک مخارج پڑھے تھے، پرسوں ہم نے پڑھا تھا طا دال تا تک مخرج، تو آج کے جو مخرج ہمیں پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے ضا، ثا، ظا۔ ان کو میں ایسے سیکوینس کے ساتھ یاد رکھنا، تو ضا، غال اور سا۔ پہلے ہم مخرج ان کا دیکھ لیتے ہیں، یہ کہاں سے نکلتے ہیں یہ 3 حروف۔ یہ نکلتا ہے زبان کا سرا۔ سرا میں نے آپ کو بولا تھا اگر یہ زبان کی نوک ہے، مثال کے طور پہ یہ زبان کی نوک ہے، یہ ٹپ ہے، تو میں نے بولا تھا ٹپ سے تھوڑا سا پیچھے یہ ہوتا ہے سرا، ٹھیک ہے، یعنی ٹپ تھوڑی سی باہر نکلی تو آئے گا سرا، ٹھیک ہے، اگر یہ زبان ہے ہماری تو یہ ہوگا سرا۔ زبان کا سرا کہاں لگے گا؟ اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے کے ساتھ، اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے کے ساتھ۔ یہ جو مثال کے طور پہ یہ اوپر کے دانت، تو اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے کے ساتھ لگے گا، تو یہاں سے ادا ہوں گے یہ 3 حروف۔ یعنی ان 3 حروف میں آپ کو یاد رکھنا ہے، ان میں بالکل بھی سیٹی کی آواز نہیں نکلے گی، یہ س کی آواز نہیں نکلے گی۔ جب ان کو آپ پروناؤنس کریں گے تو ہوا باہر نہیں نکلے گی، ٹھیک ہے۔ اب میں آتا ہوں اس امیج کو، دیکھیے جو یہاں پہ امیج دکھائی گئی ہے نا، یہ والی، اس میں دیکھیے یہ جو وائٹ کلر ہے نا، یہ جو وائٹ کلر یہ دانت ہے، ٹھیک ہے، یہ ہماری زبان ہے۔ تو زبان تھوڑی سی یہ والی باہر نکلی ہے، اور زبان کے سرے کے اوپر، اوپر والے دانتوں کا اندرونی کنارہ یہاں پہ ٹچ ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے نا یہ ٹچ ہو رہا ہے۔ تو تھوڑی سی زبان اپنی باہر نکالو، آپ بھی پریکٹس کرو، زبان تھوڑی سی باہر نکالی اور پھر اوپر والے دانتوں کے کنارے کے ساتھ لگائی، ایجز کے ساتھ لگائی، ہیڈ آف دا ٹنگ ٹچنگ دا انر ایج آف دا اپر فرنٹ ٹیتھ، اپر فرنٹ ٹیتھ جو ہے نا ان کے ایجز کے ساتھ لگاؤ۔ تھوڑی سی زبان کی نوک جو ہے وہ باہر نکالو، پھر لگاؤ، پھر پڑھو لا، لا، لا کو پر پڑھنا ہے، یہ حروف مستعلیہ ہے، یہ یاد رکھو۔ لا اس طرح ہے، وال یہ ہے، لا یہ ہے، وال، اور وہیں سے ہوگا ادا سا، سا، لا، وال، سا، لا، وال، سا۔ زال اور ضا میں کیسے فرق ہوگا؟ زال باریک پڑھا جائے گا، ضا پر پڑھا جائے گا۔ باریک کو میں لکھوں گا بی نیچے، ضا کو پر پڑھا جائے گا، اس کو لکھوں گا میں پی، ٹھیک ہے۔ ضا پر ہوگا، زال باریک ہوگا، لیکن تینوں میں سیٹی نہیں نکلے گی، نہ ضا میں، نہ زال میں، نہ سا میں۔ بعض لوگ اس کو زا پڑھتے ہیں، زا، یہ غلط ہے، زا نہیں پڑھنا ہے، لا، لا، لا۔ تو یہ یاد رکھا آپ نے، یہ زبان کی نوک جو ہے نا، زبان کی نوک تھوڑی سی باہر نکالنی ہے، پھر اس کا سرا جو ہے وہ لگانا ہے اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے کے ساتھ، یہ دیکھو ادھر، تو یہاں سے ادا ہوگا یہی ضا، ذال، صا۔ مثال کے طور پہ ایگزامپلز میں آپ کو یہاں پہ دوں گا،
नमाज जब आप पढ़ते हैं तो रुकू में जब जाते हैं आप क्या पढ़ते हैं? सुबहान रब्बियल रब्बियल अजीम, रब्बियल अजीम, ये ज़ा है, सुबहान रब्बियल अजीम। तो ये ज़ा है अजीम, इसको पढ़ना है, अजीम नहीं पढ़ना है। जो अजीम पढ़ेगा ना वो गलत होगा। तो सुबहान रब्बियल अजीम में ज़ा है, ज़ा। इसी तरह जो है ना हमारा एक लेटर है जाल। जाल हम कहाँ पे करते हैं? जब हम पढ़ते हैं सिरातल लज़ीना, क्या पढ़ते हैं? सिरातल लज़ीना। ये जीना में ये जो जाल है ना, ये वाला जाल, ये जाल है। सिरातल लज़ीना, यहाँ पे अगर किसी ने जीना पढ़ा वो गलत है, रीना पढ़ना है, सिरातल लज़ीना, सिरातल लज़ीना। ठीक है? तो ये वाला जो दाल है कहाँ से अदा होता है? जुबान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से। इस तरह और भी जगहों पे है, मिसल अल्लज़ी, ये वाला दाल आप याद रखें। और ये ज़ा। फिर है सा। सा भी हम करते हैं, इन्ना अअतैना कल कौसर, पढ़ते हैं कौसर। ये सा है, इसको कौसर बाज लोग पढ़ते हैं, सर नहीं पढ़ते। सर, 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 कौसर, कौसर, कौसर। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, जब मैं पढ़ाता हूँ ना आप भी किया करें ये प्रैक्टिस। रा निकल रहा है अपनी जगह से, इसमें सीटी मत निकलिए। तो आप अपना हाथ सामने रखेंगे, फिर पढ़ेंगे वा, वाल, सा, वा, वाल, सा, वा, वाल, सा। और भी दूसरे तरीके जो मैंने बताया था कि इन हरूफ को कैसे मखरज अगर मालूम करना हो तो इनसे पहले हरकत लगाएंगे, हमजा, वा जबर, आव, वा को पुर पढ़ना है साथ, हाँ? आव। इस तरह हमजा जाल जबर, आव, हो गया फर्क। हमजा सा जबर, आफ। तो ये लगा कर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर जेर भी लगा सकते हैं, इव, इव, इफ, ऐसे ही है। ये मखरज क्लियर हो गया होगा आपको, उम्मीद है। नेक्स्ट मखरज है जा सीन सौद। जा सीन सौद कहां से अदा होता है? जुबान की नोक, जो टिप ऑफ द टंग है, वो लगती है दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे, ऊपर वाले दांत भी और नीचे वाले दांत भी। देखिए, ये देखिए, ये वाली पिक्चर रेड कलर की, ये है जुबान, ये जो आपको दिख रही है ना, ये जुबान है, जुबान की नोक ये है। ठीक है? ये जो, ठीक है, ये लगती है दोनों दांतों, ये है नीचे वाले दांत, इनका किनारा हो गया ये। ठीक है? ऊपर वाले दांत ये है, इनका किनारा हो गया ये। जब ये दोनों दांत मिलते हैं, ये दांत नीचे आएंगे ये वाले, तो और ये भी ऊपर जाएंगे, और जब ये दोनों दांत मिलेंगे तो ऐसे होगा, जैसे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है ना, तो ये दोनों दांत मिलेंगे। तो ये जुबान की नोक दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से लगेगी, ज्यादातर हिस्सा इसका लगेगा नीचे वाले दांत के साथ, लेकिन थोड़ा सा टच ऊपर वाले दांत के साथ के किनारे के साथ भी होगा, यानी दांतों की जो एजेस हैं उसी के साथ लगेगा ये जुबान की नोक। तो वहां से अदा होंगे ये तीन हरूफ, जा सीन सौद। अब मैं यहाँ पे एक पिक्चर ड्रा करूंगा, आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगा, हो सकता है उधर आपको समझ ना आया हो। पर मिसाल, ये हमारे दांत, ये ऊपर वाले दांत, मैंने देखा है ये कौन से फ्रंट टीथ है, ऊपर वाला फ्रंट टीथ है, और ये नीचे वाला फ्रंट टीथ। ठीक है? जिनको हम सनाया भी बोलते हैं, आपको याद होगा। अब यहां से आएगी जुबान हमारी, ये आ गई जुबान सर। तो जुबान की नोक इधर लगेगी। ठीक है? जुबान की नोक लग गई इधर, ज्यादा हिस्सा इधर लगेगा, नीचे वाले के ऊपर भी थोड़ा सा टच होगा। जब ये टच होगा, ये टच ही नहीं करके रखनी है आपको, ये वहां पे लगेगी तो यहां से अदा होगा। आप पढ़िए, जा, जा, ये वाला जा, ये यहाँ पे यही दिखाया गया है इस पिक्चर में, इस वाली पिक्चर में सेम। तो पढ़िए, जा, इस तरह, सीन, सीन, सीन। सीन की आवाज नाक से नहीं निकलनी है, सीन, मगर सीटी निकलेगी, इन तीनों में सीटी निकलेगी। इस तरह है, सौद। सीन और सौद में फर्क कैसे होगा? इनकी आवाज मिलती जुलती है ना। सीन को हम बारीक पढ़ेंगे, बारीक को आप याद रखिए, मैं बी से लिखूंगा। सौद को हम पुर पढ़ेंगे, इसको मैं यहाँ पे पी लिखूँ। ठीक है? जा,
सीन, इसको पढ़ेंगे सौद, सौद, फुल माउथ के साथ, सौद। अच्छा, पुर पढ़ते वक्त हमें याद रखना है, हमें होंठ गोल नहीं करने। इसमें क्या होता है पुर पढ़ने का तरीका मैं एक बार फिर बताऊंगा। पुर पढ़ने का तरीका मैंने बोला था, जुबान जो है ना पीछे, जुबान की जड़ जो है वो तालू की तरफ बुलंद होती है। सौद, सौद, आप तस्वर करें आपके मुंह में खाना है, सौद, जा, सीन, सौद। एग्जाम्पल पहले हम एग्जाम्पल्स में हम पहले इनको हरकत लगाएंगे सबको। हमजा, जा, जबर, अज, 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 ये सीटी निकल जाएगी, विसल लाइक साउंड, अज। इस तरह हमजा, जा, जीर, इज, ठीक है, इज। हमजा, जा पेश, उज, ठीक है। इस तरह हम सीन को भी लगा सकते हैं। हमजा, सीन, जबर, अस, अस, ये ऐसे ही। हमजा, सीन, जेर, इस, ऐसे ही। हमजा, सीन पेश, उस। आ रहा है समझ? अब करेंगे हम सौद को। हमजा, सौद, जबर, अस। इस तरह हमजा, सौद, जेर, इस, ऐसी। हमजा, सौद पेश, उस। सौद को पुर पढ़ना है, ये याद रखना। अब मैं एग्जांपल दूंगा कुरान करीम में हम कहाँ ये यूज करते हैं, सब की दूंगा मैं एग्जांपल इंशाल्लाह। ये जा आप कहाँ यूज करते हैं? आप पढ़ते हैं इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। जब उसमें आप पढ़ते हैं ना अंज़लनाहु, उसमें यही जा है, अंज़लनाहु, ठीक है, अंज़लना, तो ये जा है, ठीक है। सीन का हम यूज करते हैं, सीन बहुत सारी जगहों पे करते हैं। मिसाल के तो हम करते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मुस्तकीम। अभी हमने आयत पढ़ी उसमें भी था सिरातल मुस्तकीम, मुस्तकीम। तो आपको ख्याल रखना है इस सीन को कैसे प्रोनाउंस करना है, विद विसल। साद को भी हम कुरान में बहुत जगह यूज करते हैं, मिसाल के तौर पे हम कहेंगे सिरातल लज़ीना। तो सिराता जब हम पढ़ेंगे, सिराता में साद को पुर पढ़ेंगे, सिराता। अगर हम इधर सिराता पढ़ेंगे ना, सिराता, तो ये सीन साद भी बारीक हो जाएगा, ता भी बारीक हो जाएगा, ये साद बन जाएगा सीन, ता बन जाएगा ता। तो इन दोनों को पुर पढ़ना है, साद को भी ता को भी। तो ये बनेगा सिराता, सिराता। तो पुर पढ़ने का तरीका, इसको प्रैक्टिस करनी है थोड़ी। और ये याद रखना है पुर पढ़ते वक्त होंठ गोल नहीं करते हैं, बाज लोग होंठ गोल करते हैं, होंठ नहीं गोल करने। बस इतना समझना है कि पुर होता कैसे, पुर होने का तरीका मैं एक बार फिर बताता हूँ। जुबान की जड़ तालु की जानिब उठती है, और इसको हम, अगर हम अपने इस तरह अंदाजा लगाएं तो जब हम खाना खाते हैं, खाना खाते वक्त जब हम बात करते हैं उस वक्त पुर बात होती है, हमें यही तस्वर करना है, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। जा, सीन, सौद, जुबान की नोक लगती है दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से, दोनों दांतों से मुराद ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांत। ये मैंने पिक्चर में दिखा दिया है, अगर कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट मखरज पे चलते हैं। नेक्स्ट मखरज है हमारा पा, बा, बेम, वाव। चार हुरूफ, ये चारों की चारों होंठ से अदा होते हैं। इन चारों को कहते हैं हुरूफ शफविय्यह। इनको कहते हैं हुरूफ शफविय्यह, क्योंकि शफतैन, होंठों को शफतैन कहते हैं या शफतान कहते हैं। तो इसलिए इनसे हुरूफ जो अदा होते हैं उनको बोलते हैं हुरूफ शफविय्यह। सिर्फ इन हुरूफ में होंठ यूज होंगे, बाकी हम किसी हरफ को अदा करते वक्त होंठों का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए जी, फा का मखरज पढ़ते हैं। फा का मखरज होता है ऊपर वाले दांतों के किनारे और निचले होंठ के तर हिस्से से अदा होता है। देखो जो हमारा होंठ होता है ना, ये होंठ है, मिसाल ये हमारे होंठ बने। होंठ मीन लिप्स। तो लिप्स का अंदर से तर पार्ट होता है, बाहर से खुश्क पार्ट होता है। तो अंदर वाले पार्ट के साथ लगेगा हमारे ऊपर वाला दांत, ऊपर वाले दांत का किनारा। तो वहां से अदा होगा
यही फा। फा। आप ऊपर वाले दांत लगाएंगे निचले होंठ के साथ, ये आप याद रखिएगा। ऊपर वाला दांत लगाएंगे निचले होंठ के साथ। बाज लोग दोनों होंठ मिलाते हैं, होंठ नहीं मिलाते हैं। निचले होंठ, ऊपर वाला दांत, फिर लगा पढ़ना है फा। 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 होंठ नहीं मिलाने, बाज ऐसे पढ़ते हैं फा। फा। वो दोनों होंठों को मिलाते हैं, वो बनेगा ये वाला फा जो हम पढ़ते हैं ना, ये उर्दू में फा ऐसे। पे दो चश्म है, वो फे फा बनता है, वो फा नहीं है, ये फा है। फा। फा। ऊपर वाला दांत, निचला होंठ। मिसाल ये दांत है, तो अब इधर से हमारे होंठ है। मिसाल ये मिसाल होंठ है, तो होंठ के तर हिस्सा लगेगा इसके साथ ऐसे। फा। ऊपर वाले होंठ जो है ना वो नहीं टच होंगे, ऊपर वाले होंठ इससे अलग रहेंगे। ठीक है। चलिए, फा का मखरज समझ आ गया, ऊपर वाले दांत लगाने हैं निचले होंठ के तर हिस्से के साथ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बा। 15th मखरज। 14 हो गए यहां तक। 15th मखरज में तीन इंक्लूड होते हैं, बा, बेब और वाव। क्योंकि ये सब जो है ना, इनमें सब में दो होंठ यूज होते हैं, इसलिए इसको एक ही मखरज गिना जाता है। बा अदा होता है दोनों होंठों के तर हिस्से से। दोनों होंठों का जो वेट पार्ट होता है अंदर का, वो मिलता है, होंठ दो मिलेंगे। ये सिंपल है। बा। 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 ये दिखाया भी गया है, यानी यहाँ पे खुशक हिस्सा जो है ना, ये ऐसे ही रहेगा। बा। ऐसे ही खुशक हिस्सा बाहर रहेगा। बा। अच्छा, मीम में क्या होता है? मीम में दोनों होंठों इसमें खुशक मिलता है। बा में तर हिस्सा मिलता है, मीम में खुशक हिस्सा मिलता है। देखिए मीम में क्या होगा। मीम में ये हिस्सा और ये मिलेगा, ये इसके साथ मिलेगा। अच्छा, आज सर्दी है, सर्दी में जब हमारे होंठ खुश्क हो जाते हैं ना, हम उनको तर करने के लिए फिर क्या कहते हैं, हम खुशी किस्म को आपसे मिलाते हैं, तो वहीं से अदा होगा। मीम। 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 तो मीम में आप ये ख्याल रखेंगे, और मीम को गुन्ना नहीं करेंगे। मीम। मीम पढ़ेंगे, मीम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। और उसके बाद है वाव। वाव बिल्कुल इजी है। वाव अदा होगा दोनों होंठों को गोल करके। वाव। 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 ये इजी है। तो चलते हैं हम, नेक्स्ट दो मखरज हमारे रह गए हैं। 15 मखरज हो गए, अब 16th मखरज है हुरूफ मद्दा। हुरूफ मद्दा आपको आगे डिटेल में पढ़ने हैं, फिलहाल आप ऐसे समझिए। हुरूफ मद्दा अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा होते हैं। ये अलिफ वाव और या नहीं है, ये अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा है। अलिफ मद्दा कब होता है? जब अलिफ से पहले जबर हो, जैसे आगे आगे आप पिक्चर देखिए, यहाँ अलिफ से पहले जबर है। इस तरह वाव मद्दा कब होता है? जब वाव साकिन से पहले पेश हो, यानी जज्म वाले वाव से पहले पेश हो। या मद्दा कब होता है? जब या साकिन से पहले जेर हो। ये हम दोबारा पढ़ेंगे। तो जब ऐसी कंडीशन हो, तो हमारे पास साउंड निकलता है बा, ऊ, बी। ये आ ऊ ई साउंड जो निकलता है ना, ये है हुरूफ मद्दा का मखरज। आ ऊ ई ये निकलता है मुंह के खाली हिस्से से। इसको बोलते हैं ऑरल कैविटी इंग्लिश में। मुंह का जो खाली हिस्सा होता है, तो वहां से अदा होता है ये आ, ई, ऊ, ये साउंड। मिसाल बा। बा में जो आर साउंड निकला ना, वो कहां से निकला? खाली हिस्से से। बू में जो ऊ का वाला साउंड निकला, वो खाली हिस्से से निकला। बी में जो ये ई वाला साउंड निकला, वो निकला खाली हिस्से से। ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया हुरूफ मद्दा का मखरज। हुरूफ मद्दा का मखरज क्या है? हुरूफ मद्दा का मखरज है मुंह का खाली हिस्सा। तो कभी आपको बोलेगा या का मखरज क्या है, तो या का मखरज डिफरेंट है। या मद्दा का मखरज क्या है? या मद्दा का मखरज है मुंह का खाली हिस्सा। वाव का एक मखरज अलग है, अभी हमने पढ़ा होंठ से ज्यादा होता है, लेकिन वाव मद्दा का मखरज क्या है? वाव मद्दा का मखरज है वो मुंह के खाली हिस्से से ज्यादा होता है। अभी ये आपको शायद समझ नहीं आएंगे जो नए हैं, कि अलिफ मद्दा क्या होता है, वाव मद्दा क्या होता है, या मद्दा क्या होता है। ये हमें आगे इंशाल्लाह डिटेल के साथ पढ़ने हैं। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि मुंह के खाली हिस्से से हुरूफ मद्दा का मखरज होता है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा अदा होता है। ठीक है। अब लास्ट हमारा मखरज है, वो है 17th। ये है गुन्ना का मखरज। गुन्ना अदा होता है खैशूम नेजल कैविटी, ये जो नाक हमारी है ना, नाक के अंदर का जो बांसा, उसको उर्दू में बोलते हैं नेजल कैविटी है, वहां से गुन्ना का मखरज होता है। मिसाल हमें पढ़ना है इन, इन, यहाँ पे गुन्ना हमने किया इन में। ये गुन्ना का मखरज कहाँ से अदा होगा?
ये नेजल कैविटी से अदा होगा। इस तरह है मिम, म, मिम, म, ठीक है। मीम मुशद्दद में भी गुन्ना होता है, यानी मीम तशदीद वाले मीम में भी गुन्ना होता है, तशदीद वाले नून में भी गुन्ना होता है। तो ये गुन्ना हम कहाँ से करेंगे? ये नाक से करेंगे। मैंने पहले ही बोला था आपको कि हुरूफ को अदा करते वक्त आपको गुन्ना नहीं करना है। मीम को अदा करते वक्त गुन्ना नहीं पड़ना है, नून को अदा करते वक्त गुन्ना नहीं करना है, या जीम को अदा करते वक्त गुन्ना नहीं करना है, क्योंकि नाक से आवाज नहीं निकालनी है। नाक से आवाज तभी निकालनी है जब हम बोलेंगे। तो नाक से जो आवाज निकलती है वो गुन्ना का मखरज होता है। गुन्ना कहाँ कहाँ होता है, फिलहाल हमने आपको एग्जांपल्स दो यहाँ पे दी हैं, आगे हम इसको तफसील से पढ़ेंगे इंशाल्लाह, डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ इंशाल्लाह। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं हम इन हुरूफ को अदा करते वक्त, जो उमूमी अगलात हमें पाई जाती है। एक तो ये होता है कि सा, जाल, ज़ा। लोग जो है इनको सिटी के साथ पढ़ते हैं, हालांकि इनको सिटी के साथ नहीं पढ़ना है, इनको बिल्कुल विदाउट विसल पढ़ना है, विसल साउंड के साथ नहीं पढ़ना है। ऐसे सा, सा, लाल, 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 इस तरह वा, वा। इनमें सीटी नहीं निकालनी, ये आपको ख्याल रखना, ये मिस्टेक आपको नहीं करनी। इस तरह बाज लोग वा को बारीक पढ़ते हैं, वा की जगह जा पढ़ते हैं। जा नहीं पढ़ना है, ये जाल बन जाएगा फिर। इसको पढ़ना है वा, मोटा पढ़ना है वा, यानी पुर पढ़ना है पुर, वा। इस तरह बाज लोग बीम में गुन्ना करते हैं। मैंने बोला ना बीम में गुन्ना नहीं करना है, बीम मुशद्दद में करना होता है गुन्ना। खाली बेम को पढ़ते हुए गुन्ना नहीं करना है। अब पढ़ेंगे बेम, बेम। मीम नहीं पढ़ना है, जो मीम पढ़ते हैं ना वो गलत है। आपको पढ़ना है बेम, बेम, ऐसे ही। बाज लोग फा दो होंठों से अदा करते हैं, हालांकि दो होंठों से अदा नहीं होता है फा। ये होता है ऊपर वाले दांत और निचले होंठ से, दोनों होंठों को नहीं मिलाना है। फिर उसको फा पढ़ते हैं आधे फा, फा नहीं पढ़ना है। फा, फा, ऊपर वाला दांत लगाओ नीचे होंठ के ऊपर। ये इजी है, ऊपर वाला दांत निचले होंठ के ऊपर लगाओ तो हो गया फा। अब मैं रिपीट करता हूँ जितना मैंने अभी पढ़ाया, और उसके बाद आपके क्वेश्चंस भी देखता हूँ। तो स्टार्ट हमने लिया एक कुरान करीम की आयत से, जिसमें अल्लाह ताला के साथ इस शैतान ने एक कन्वर्सेशन की, और उसमें शैतान ने बताया अल्लाह ताला को कि मैं तुम्हारे सीधे रास्ते में बैठूंगा और तुम्हारे बंदों को गुमराह करने के लिए हर हरबा अपनाऊंगा। तो सीधा रास्ता कौन है? सीधा रास्ता कुरान है। कुरान फरमाता है सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 9 में कि कुरान ही वो राह दिखाता है जो सीधी राह है। तो सीधे रास्ते से रोकने के लिए शैतान तो कोशिश करेगा। हमें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कोशिश करनी है कि हम कुरान की राह पे ही चले और कुरान को अच्छे से सीखें। नेक्स्ट, फिर हमने मखारिज पढ़े। मखारिज में हमने ज़ा, ज़ाल, सा का मखरिज पढ़ा। ये अदा होते हैं जुबान का सिरा, सिरा कहते हैं नोक से पीछे जो हिस्सा होता है, वो ऊपर वाले दांतों के अंदरूनी किनारे के साथ लगानी है, एजेस के साथ लगानी है, अपर टीथ के, अपर फ्रंट टीथ के एजेस के साथ लगानी है। तो वहां से ये तीन हरूफ अदा होंगे, ज़ा, ज़ाल, सा। ये तीन हरूफ जो है अदा होंगे, ये होंगे विदाउट विसल अदा, ये सीटी के बगैर अदा होंगे। इसके बाद नेक्स्ट तीन हरूफ आते हैं, ये तीन हरूफ सीटी के साथ निकलते हैं, इनको बोलते भी हैं हरूफ सफीरिया। आप इनका नाम आगे भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो यहाँ पे भी फिलहाल याद रखिए। इनको हरूफ सफीरिया बोलते हैं, सफीर बोलते हैं सीटी को। इनमें एक सिफत पाई जाती है, सिफत सफीर। तो इनमें इनको सिटी के साथ पढ़ना है, जा, सीन, सौद। जुबान की नोक लगेगी दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे के साथ, यानी ऊपर वाले दांत भी और नीचे वाले दांत भी। ज्यादा हिस्सा नीचे वाले दांत के साथ ही लगेगा और ऊपर वाले दांत के साथ स्लाइड टच लगेगा। तो अदा होंगे जा, जड की तरह जा, सीन, सौद, सौद। सीन और सौद में फर्क क्या है? अभी किसी ने बोला था सीन और सौद में फर्क करके बताइए। सीन को बारीक पढ़ना है, सौद को पुर पढ़ना है, सीन, सौद। अब मैं और एग्जाम्पल से भी फर्क करके दिखाता हूँ। मिसाल हमारे पास है सौद से सिरात, सिरात, सिरात। सौद को मैंने पुर पढ़ा। अगर हम सीन से पढ़ेंगे ये बनेगा सिरात, सिरात, सिरात। सी और सी में फर्क है, सी, सी। सी आएगा सीन से, सी आएगा सौद से। ठीक है। नेक्स्ट, हमने होंठों से निकलने वाले चार हुरूफ पढ़े। फा, फा अदा होता है निचले होंठ के तर हिस्से और ऊपर वाले दांतों के
किनारे से, ऊपर वाला दांत लगता है निचले होंठ के तारे से के साथ, ठीक है। फिर हमने बा पढ़ा, बा होता है दोनों होंठों के तारे से, दोनों होंठों के वेट पार्ट मिलता है तो बा अदा होता है। फिर हमने मीम पढ़ा, मीम होता है दोनों होंठों के खुश्क हिस्से से जो बाहर वाला पार्ट होता है, मीम। और फिर हमने वाव पढ़ा, वाव होता है दोनों होंठों की गोलाई से अदा। फिर हमने बोला 16th मखरज क्या है, वो हुरूफ मद्दा का मखरज है। हुरूफ मद्दा कहाँ से अदा होते हैं, ये मुंह के खाली हिस्से से अदा होते हैं। हुरूफ मद्दा में है अलिफ मद्दा, वा मद्दा, या मद्दा। यानी आ वो मुंह के खाली हिस्से से निकलता है, ऊ का साउंड भी और ई का साउंड भी। ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, फिर आपको समझ आएगा। आगे चलते हैं तो 17th मखरज है वो गुन्ना है। 17th मखरज गुन्ना है। जो गुन्ना का मखरज है वो नशूम है, नेजल कैविटी है। जो नाक की कैविटी है जहां से गुन्ना निकलता है, वहां पे गुन्ना होता है। जब भी किसी हर्फ में हमें गुन्ना करना होगा तो वहां से अदा होगा। तो फिलहाल हम इन हरूफ को पढ़ते वक्त गुना नहीं करेंगे, आगे कुछ रूल्स आएंगे। रूल अप्लाई करते वक्त हम गुना करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी, इन्ना, मिम्मा, ठीक है। फिर मैंने कुछ मिस्टेक्स को हाईलाइट किया है कि जो हम करते रहते हैं उमूमन। ता दाल ज़ा को सीटी के साथ बाज लोग पढ़ते हैं, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको सीटी के साथ नहीं पढ़ना चाहिए। इस तरह फिर ज़ा को बाज लोग बारीक पढ़ते हैं, इसको पुर पढ़ना है ज़ा। मीम को बाज लोग नाक से निकालते हैं आवाज, नाक से आवाज नहीं निकालनी, ठीक है। इस तरह फा को दोनों होंठ मिलाकर बाज लोग पढ़ते हैं, फा पढ़ते हैं, वो गलत है, इससे हमें बचना चाहिए। तो अब मैं आता हूँ आपके क्वेश्चंस की तरफ। अगर कोई अनम्यूट भी करना चाहे तो वो हैंड रेज करे, मैं उसको अनम्यूट करूँ। अच्छा जी, मैंने पहले भी कहा, अब भी कहता हूँ कि आपको हो सकता है किसी को ये लग रहा हो कि ये टफ है, मैं पहली बार आया हूँ, शायद मुझे ही नहीं आता, बाकियों को आता होगा। तो ऐसे शर्माएगा कोई, ऐसे आपको शर्माना नहीं है, कुरान पढ़ते हुए किसी को नहीं शर्माना है। हम सब सीखने के लिए आए हैं, किसी को थोड़ा जल्दी समझ आएगा, किसी को बदेर समझ आएगा, लेकिन समझना सबको है। और हमारा मिशन ये है कि हम सब स्टूडेंट्स को इंशाल्लाह तजवीज सिखाएंगे। और हमारे पिछले पेज में भी जो स्टूडेंट्स थे, कुछ को जल्दी होता था पिकअप, कुछ का नहीं होता था, लेकिन हमने उनको नहीं छोड़ा। जिस जिसको शौक था हमने उनको पूरे अल्हम्दुलिल्लाह टाइम दिया, और अब भी दे रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स को, और वो कोशिशें कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए आप हिम्मत ना हारें, जज्बे के साथ रहें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इंशाल्लाह सिखाएंगे। हरूफ के नाम अभी मैंने आपको नहीं बताए, हरूफ तरफिय से मुराद है लाम, नून और रॉ। अच्छा, मुझे एडमिशन करना था, आप अगर ग्रुप में है ना तो आप हमें टेक्स्ट कीजिए, या वहाँ पे फॉर्म भी होगा ग्रुप में, वो फॉर्म आपको फिल करना है एडमिशन के लिए। जो चाहते हैं कि इसके बाद वो प्रैक्टिस भी करे और उनको डीपीपीज भी मिले, यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिले, जिससे उनके कवायद मजबूत होते हैं, और उसके बाद उनका एग्जाम भी हो, आखिर में उनको सर्टिफिकेट भी मिले। उसके लिए उनको जो है ना फॉर्म भरना पड़ेगा, 200 रुपीज फी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज की क्लास हो गई ऑलमोस्ट, आप सबको शायद और कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। तो आगे भी आप बता सकते हैं, ग्रुप में भी आप लिख सकते हैं, अपने टीचर को भी बता सकते हैं। इंशाल्लाह आपके कंफ्यूजन क्लियर करके ही रहेंगे इंशाल्लाह। तो सब मेहनत करें इंशाल्लाह। हम कुरान के सफ़र पे इंशाल्लाह एक साथ चलेंगे, एक दूसरे की मदद भी करेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो अब हम इंशाल्लाह इख्तितामी मजलिस की दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा इस क्लास में रहने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।